Today, we are going to start the unit 5, that is the wave propagation. Clear?
So in this particular unit, we will discuss how the waves are propagating from the transmitting antenna that is designed clear, and how it get received on the receiving antenna. The wave that is propagating is called the electromagnetic waves. Clear? It having the characteristics means moment like a transverse wave, or nature of the wave movement will be transverse type or longitudinal type. So first of all, I will define the what is transverse wave. Clear? So you know that it is a type of wave that occurs in a direction perpendicular to the direction of propagation. Clear? Which exactly radiate by the transmitting antenna, which is also known as traveling wave. Clear? That is also known as traveling wave. The part of a wave exactly that is travels along an or Vishal, are you getting my voice? Vishal. Yes, sir. Okay. Okay. Good morning, beta. Good morning, sir. Okay. So, think, any class were scheduled from 9 to 10? Exactly. Students have not joined yet. Hmm? No, sir. Okay. Okay. I have dropped a message also in the group, but okay. So now we start with the unit 5. Okay, clear. So that is exactly the wave propagation. Clear. In this particular unit, we will cover how the electromagnetic waves get propagated from the transmitting antenna to receiver antenna. Clear. So basically, we all know that there is a communication between transmitter and receiver through space wave, through ground wave, and through sky wave. Three exactly propagation mechanism are following: space wave propagation, ground wave propagation, and sky wave propagation. Clear? So if you talk about the electromagnetic wave, exactly it has the nature of propagation like transverse type nature or longitudinal type nature. Clear? So transverse wave की अगर हम बात करें, it is exactly having the direction of movement that is perpendicular to the propagation. Clear? So wave exactly जो इसमें प्रोड्यूस होती हैं वो आपकी प्रोपगेशन जो हमारा है जिस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर आती है। जैसे आप देख रहे होंगे ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इफ यू सी दिस डायग्राम, yeah, so in this diagram you can see this is the propagation direction and this is the wave direction. Clear? So these are the transverse wave exactly they that are perpendicular to the moment. Clear? So this is wave is radiated by the transmitting antenna and it is called the traveling wave. इसको हम लोग traveling wave भी कहते हैं। ठीक है? Your transverse wave is also known as traveling wave. Clear? A part of the wave travels along or near the surface of the earth exactly called the ground wave. ये सभी को पता है कि जो ground wave या surface wave होती है, ठीक है, जिसको हम surface wave भी कहते हैं ground wave को, वो क्या होता है, उसमें हमारा जो wave travel करती है वो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो भी ये ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, दिस इज योर ट्रांसवर्स वेव, इसका कुछ पार्ट आपका सरफेस से होके मीन्स ग्राउंड वेव से होके ट्रेवल करता है थ्रू सरफेस और ग्राउंड। क्लियर? मीन्स ग्राउंड से स्ट्राइक करके रिसीव होता है। लाइक वाइज जैसे ये हमारा सपोज ये प्लेन है, दिस इज योर ग्राउंड सरफेस, तो वेव आएगी तो ऐसे कुछ स्ट्राइक होके फिर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है? दिस इज एग्जैक्टली द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। ठीक है? इसके बाद इसी का कुछ पार्ट आपका जो है स्पेस के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है, कुछ पार्ट आपका स्काई वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ठीक है? तो जो भी ट्रांसमिशन होगा उसी के बेसिस पे हम इसको डिसाइड करते हैं, इज इट ए स्पेस वेव प्रोपगेशन, इज ए स्काई वेव प्रोपगेशन और समथिंग एल्स। क्लियर? So this exactly decides. Clear? Now if we further move, ठीक है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पार्ट को देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोपगेशन, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है।
विशाल विशाल बेटा अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, की आवाज आ रही है। हेलो, ठीक है बेटा। ओके, सो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग, लाइक ग्राउंड वेव क्या होती है, स्पेस वेव क्या होता है, ठीक है, स्काई वेव क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस में। इसमें से इस यूनिट से आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेव प्रोपगेशन से बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। सो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फंडामेंटल क्वेश्चंस इसमें से बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था कि ग्राउंड वेव क्या होती है, ग्राउंड वेव, और इसको हम सरफेस वेव भी कहते हैं। दिस इज एग्जैक्टली अ टाइप ऑफ वेव एग्जिस्ट व्हेन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीनाज आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। ये वेव कब मिलेगी, जब ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना एक दूसरे से क्लोज होंगे, ठीक है, और अर्थ सरफेस के क्लोज होंगे, ठीक है। कहाँ पे, जो अर्थ सरफेस अगर होगी तो उसके क्लोज होंगे, तभी इसको हम ग्राउंड वेव बोलेंगे, ठीक है। एंड द वर्टिकली पोलराइज्ड होंगे। वर्टिकली पोलराइज मीन्स जो भी इनका पैटर्न होगा जो मिलेगा वो वर्टिकली पोलराइज्ड होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो वेव एग्जिस्ट होती है ग्राउंड वेव, दैट इज एग्जैक्टली एग्जिस्ट व्हेन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर एंटीनाज आर क्लोज टू ईच अदर, मींस अर्थ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एंड वर्टिकली पोलराइज्ड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेव प्रोपगेशन इज यूजफुल एट ब्रॉडकास्ट एंड लो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये वेव हमारी कहाँ यूजफुल है, दीज वेव्स आर यूजफुल फॉर द ब्रॉडकास्ट, मीन्स कोई भी सिग्नल आपको ब्रॉडकास्ट करना है देन इट इज वेरी मच यूजफुल, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द लो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जहाँ लो फ्रीक्वेंसीज वेव आपको ट्रांसमिट करनी है वहाँ भी ये यूजफुल है। सो ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स एग्जैक्टली रिसीव्ड ड्यूरिंग द डे टाइम एंड आर ड्यू टू ग्राउंड वेव्स। जो भी ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स होते हैं वो हमारे दिन में रिसीव होते हैं, डे टाइम में रिसीव होते हैं, और बेसिकली ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन का पार्ट होते हैं ड्यू टू द ग्राउंड वेव रिफ्लेक्शंस, क्लियर। सो इट इज यूजफुल फॉर द कम्युनिकेशन एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी। तो ग्राउंड वेव जनरली जो आपका प्रोपगेशन देता है वो फॉर लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी के लिए देता है, ठीक। सेकेंड वन इज स्पेस वेव। स्पेस वेव को हम लोग ट्रोपोस्फेरिक वेव भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रोपोस्फेरिक वेव। यहाँ पे जो वेव प्रोपगेट करती है वो डायरेक्टली ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जाती है इन ट्रोपोस्फेरिक रीजन, ठीक है। जो पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर है अबव द अर्थ, दैट इज विद इन द 16 किलोमीटर, इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अर्थ के ऊपर 16 किलोमीटर रेंज में जो आपका एक मतलब कह सकते हैं रीजन है, वो आपका स्पेस है, ठीक है। वहां पे ये वेव ट्रेवल करती है। इट इज वेरी मच यूजफुल अबव द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये 30 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जो है बहुत ही सुटेबल होता है स्पेस वेव प्रोपगेशन। जैसे ही आप लोग को एफएम रिसेप्शन पता होगा, एफएम सिग्नल जो होते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इनका जो रिसेप्शन होता है वो नॉर्मली स्पेस वेव प्रोपगेशन के थ्रू होता है। जैसे हम लोग जो एफएम वगैरह सुनते हैं उसमें जो उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका यस आएगा, सर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका प्रोपगेशन आएगा वो आएगा स्काई वेव प्रोपगेशन, ठीक है। तो मैं थर्ड कैटेगरी ले रहा हूँ। पहले तो इसके सबके आपको ब्रीफिंग जानना जरूरी है, इसीलिए मैं इसके जो है पॉइंट्स को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये इस पे से क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। व्हाट इज स्काई वेव, व्हाट इज स्पेस वेव, आता है। नेक्स्ट वन इज स्काई वेव। स्काई वेव क्या होता है, इसको हम लोग आइनोस्फेरिक वेव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइनोस्फेरिक वेव, ठीक है। जैसे ग्राउंड वेव को हम लोग सरफेस वेव भी कहते हैं, ठीक है। स्पेस वेव को हम ट्रोपोस्फेरिक वेव कहते हैं। ऐसे स्काई वेव को हम लोग आइनोस्फेरिक वेव कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनोस्फेरिक वेव, आयोनोस्फेरिक वेव, ठीक है। इसको आयोनोस्फेरिक वेव भी कहते हैं। इसमें जो सिग्नल आपको रिसीव होता है, द सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन
the signal reception here is by reflection of the waves from the ionosphere. ionosphere layer आपको पता है, ठीक है, waves from the ionosphere, ठीक है। इसमें क्या होता है, द ionosphere इज एन आयनाइज्ड रीजन। इसमें क्या होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो रीजन बनाता है वो एक आयनाइज्ड रीजन होता है इन आयंस की वजह से, ठीक है। पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयंस ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो विच लाइज, किस रेंज में लाई करते हैं, दिस लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 60 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, ये लाई करते हैं, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इस रेंज में ये लाई करते हैं, ठीक है। सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एग्जैक्टली पॉसिबल होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बाय द मोड ऑफ प्रोपगेशन, पॉसिबल। इससे अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना तो स्काई वेव प्रोपगेशन मैकेनिज्म आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इज पॉसिबल बाय दिस मोड ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। तो स्काई वेव प्रोपगेशन से आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, सिग्नल का, ठीक है। ये किस फ्रीक्वेंसीज के लिए यूजफुल है, इट इज यूजफुल फॉर द फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 2 to 30 मेगाहर्ट्ज, 2 to 30 मेगाहर्ट्ज, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए ये यूजफुल है, ठीक है। अब जैसे अगर जब हमारा वेव प्रोपोगेट करता है तो उसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं सिस्टम में, ठीक है। जैसे वेव आपकी जब प्रोपोगेट करेगी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो ट्रेवल हो रहा है उसको ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, उसको बहुत सारे फैक्टर हैं जो उसके प्रोपोगेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। जैसे अर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, परमिटिविटी, परमेबिलिटी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन क्या है, पोलराइजेशन क्या है ट्रांसमिटिंग एंटीना का, हाइट क्या है ट्रांसमिटिंग एंटीना की। ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फैक्ट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्रोपगेशन of EM wave from ट्रांसमीटर टू रिसीवर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा, सबसे पहला फैक्टर है अर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कंडक्टिविटी, ठीक है, परमिटिविटी, ठीक है, देन परमिबिलिटी, परमिबिलिटी, ये सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। बी पार्ट पे अगर हम आए तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, किस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो वर्क कर रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर देखें, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ
ट्रांसमिटिंग एंटीना, पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना। नेक्स्ट पॉइंट देखें, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ट्रांसमिटेड पावर या ट्रांसमीटर पावर, ट्रांसमीटर पावर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है जो भी आपका प्रोपागेशन होता है, ठीक है, कि अर्थ की कर्वेचर कैसी है, फ्लैट सरफेस है या किस तरह का हमारा उसका कर्वेचर, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देन है ऑब्स्टेकल्स बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, क्या क्या चीजें ऑब्स्टेकल्स हैं, मतलब क्या अफेक्ट कर रहे हैं सिग्नल को ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में, ऑब्स्टेकल बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द ट्रोपोस्फेरिक रीजन, ट्रोपोस्फेरिक रीजन, ठीक है, ट्रोपोस्फेरिक रीजन। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर कंटेंट और इन द ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है उसमें नमी कितनी है, मतलब मॉइस्चर कितना है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जे पॉइंट, ठीक है, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइनोस्फेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर रीजन, ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर रीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रफनेस ऑफ द अर्थ, रफनेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है टाइप ऑफ अर्थ, टाइप ऑफ अर्थ, टाइप ऑफ अर्थ में आपका आ जाएगा हिल स्टेशन टाइप का है, हिली टेरेन है, फॉरेस्ट है, सी वाटर है और रिवर वाटर है, इस पे भी डिपेंड करता है, लाइक हिली टेरेन, ठीक है, फॉरेस्ट, सी वाटर और रिवर वाटर, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमारे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होती है
one end to another end. Clear? ठीक है, यहां तो समझ में आ गया? बताइए बेटा। अब जैसे हम ग्राउंड वेव की बात कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए जैसे ये ग्राउंड वेव है, सॉरी ये ग्राउंड है आपका, दिस इज योर ग्राउंड सरफेस। ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड। सो दिस इज योर एंटीना। ठीक है, दिस इज योर एंटीना। ठीक, ये आपका जैसे है, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, मान लीजिए दिस इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये जो है रिसीविंग एंटीना है, दीज आर द रिसीविंग एंटीना। ठीक है, वेव प्रोपगेट होगी इस तरीके से कुछ ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ, सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमारी वेव प्रोपगेट होती है। क्लियर? तो दिस इज द ग्राउंड वेव बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। दिस इज व्हाट ग्राउंड वेव बिटवीन transmitting and receiving antennas. ठीक है, ये चीज है। तो इस तरीके से कुछ हमारी वेव प्रोपोगेट होती है थ्रू ग्राउंड। अगर इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो किस तरीके से बनता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, अगर देखें तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा होता है। ये देखिए, एक आरसी सर्किट फॉर्म में होगा। दिस इज एग्जैक्टली द इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अर्थ। ठीक है, जो हमारा ये सिस्टम है इस तरीके से हमारा कुछ सेटअप है सर्किट फॉर्म में अर्थ सरफेस पे, जो जिससे हमारा प्रोपगेशन मैकेनिज्म फुलफिल हो रही है। ठीक है, सो बाकी हमने इसके बारे में आपको लिखा दिया। जो भी ग्राउंड वेव से हमारी वेव प्रोपगेट होगी वो वर्टिकली पोलराइज्ड होती है, ये मैं आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सभी को? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, यस सर। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है जो टॉपिक है आपका, दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्योंकि अर्थ सरफेस से वेव रिफ्लेक्ट होके आपको मिल रही है। ठीक है, तो वी विल डिस्कस नाउ द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, या रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय द अर्थ सरफेस, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक है, एक मिनट आता हूँ इसमें। नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा अर्थ सरफेस के थ्रू, तो वी विल सी दिस। क्लियर? क्योंकि हाउ वी गेट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ चीजें इसमें समझना है। ठीक है, क्लियर? फिर हम इसमें रिफ्लेक्शन फैक्टर्स भी निकालेंगे इसी के अंदर, कि क्या हमारा रिफ्लेक्शन फैक्टर आता है इसमें। ठीक है, सो रैले क्राइटेरिया भी देखेंगे जो कि रफनेस को डिफाइन करता है सिस्टम के। ठीक है, ये सब चीजें हमें इसमें देखना होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिएगा। इफ एन ईएम वेव if an electromagnetic wave
is incident on the earth, इंसिडेंट, इसका मीनिंग तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव फ्रॉम अर्थ, मीन्स जो भी ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कर रहा है ग्राउंड वेव क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके मिल रही है अर्थ सरफेस से, ठीक है, रिसीव हो रही हैं, तो ये वही है। सो वही हम निकालेंगे कि हमारा रिफ्लेक्शन जो है उससे हम रिफ्लेक्ट कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है, कि हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। वी विल जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द व्हाट रिफ्लेक्शन फैक्टर ऑफ द अर्थ, क्लियर। So it is if an EM wave is incident on the earth surface या earth, comma, it is reflected back, ये सभी को पता है, जब वो EM वेव अर्थ सरफेस पे आके टकराएगा तो रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। So the angle of reflection is equal to the angle of incidence, the angle of reflection is equal to the angle of incidence, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, ठीक है, एज पर द स्नेल्स लॉ यू कैन से, क्लियर। सो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, सो इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, सो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट is the ratio of the reflected wave to the incident wave, ठीक है, टू द इंसिडेंट वेव, कहने का मतलब है इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रो इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव टू द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, टू द इंसिडेंट वेव, ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है। तो ये हमारा बेसिकली रो हमारा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है नियर द अर्थ, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड फील्ड्स, क्लियर, ये भी ध्यान रखिएगा, जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है, द फील्ड स्ट्रेंथ near the earth is vector sum या vectorial sum of incident and reflected fields, incident and reflected fields, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, दिस इज द रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है माइंड में, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है जो कि हम निकालने भी जा रहे हैं, रफनेस ऑफ द अर्थ, रफनेस ऑफ द अर्थ क्या होता है, रफनेस ऑफ द अर्थ, कोई बताएगा क्या होता है बेटा रफनेस ऑफ द अर्थ, रफनेस ऑफ द अर्थ कोई बताएगा। देखिए ये जो वेव्स हमारे हमको मिलती है ना, हॉरिजॉन्टल पोलराइज या वर्टिकल पोलराइज्ड, वो कैसे मिलती हैं, वो कुछ इस तरीके से मिलती हैं, वेव फॉर्म के फॉर्म में अगर आप देखेंगे, देखिए जो भी ग्राउंड वेव से आपकी वेव्स आती हैं,
दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, देखिए किस तरह से हमारी वेव्स मिलेंगी। एक वेव ये हो गई, दिस इज द वेव, क्लियर। और एक वेव आपकी हो जाएगी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द वेव, क्लियर। सो ये जो वेव है नीचे वाली, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली पोलराइज्ड। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल पोलराइज्ड। ठीक है, दिस इज वर्टिकल पोलराइज या वर्टिकल पोलराइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली वेव है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। दिस इज हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन। तो ये हमारा होता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाली जो एक्सिस है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? थीटा आई। ये किस डिग्री में रहता है? ये एंगल है, डिग्री में ही होगा। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, दैट इज रो। ठीक है, मॉड ऑफ रो, मॉड ऑफ रो। ठीक है, क्लियर। जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 1.0 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ रिफ्लेक्टेड वेव मिलता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा एग्जैक्टली जो प्लॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएशन ऑफ रो विथ थीटा आई। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएशन ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आई। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सभी को। एक टर्म आपने पढ़ा होगा ब्रेस्टर एंगल। ब्रेस्टर एंगल पढ़ा है? बताइए बेटा। हम्म, ब्रेस्टर एंगल ये क्या होता है? This is theta b is equal to theta I. Theta b is the Brewster angle. That is the incidence angle also. Clear? That is tan inverse under root epsilon r2 upon epsilon r1. Means what is epsilon? Epsilon is the dielectric constant. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, ये ब्रेस्टर एंगल है। दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव एंड दिस इज द इंसिडेंट वेव। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम डेरिवेशन पार्ट पे आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें पार्ट था जो हम बात कर रहे थे आपसे, आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा होगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट पढ़ा है? किसी ने सुना है लाइन ऑफ साइट के बारे में? हम्म, Yes, sir. लाइन ऑफ साइट क्या होता है? कि जैसे दो एंटीना अगर एक दूसरे से सेम डायमेंशंस पे हैं, स्पेसिंग भी सेम है, तो दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ सरफेस है। ठीक है, दिस इज योर अर्थ सरफेस। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें मैं पहले बता दूं फिर मैं डेरिवेशन पार्ट पे आता हूँ। जैसे आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है एंड दिस इज योर रिसीविंग एंटीना। क्लियर?
तो इनके बीच जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। क्लियर? एंटीना टू एंटीना डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होता है, दिस इज योर ट्रांसमिटिंग एंटीना, दिस इज योर रिसीविंग एंटीना। तो दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। मीन्स एक ही लाइन में वो अलाइंड हो। ठीक है? मीन्स दोनों एंटीना विद इन द लाइन ऑफ साइट हो एक दूसरे के। ठीक है? सो इस तरह का जो प्रोपगेशन होता है वो बेसिकली स्पेस वेव में होता है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ साइट हमेशा कहाँ होता है? स्पेस वेव में होता है, स्पेस वेव प्रोपगेशन का पार्ट है। क्लियर? तो इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, व्हेन द ट्रांसमिटिंग एंड receiving antennas are elevated मतलब थोड़ा उठाए जाते हैं ग्राउंड से। ठीक है? सो द यूजफुल propagation can be achieved can be achieved ठीक है, by means of space wave propagation, by means of space wave propagation, स्पेस वेव प्रोपगेशन। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? स्पेस वेव प्रोपगेशन के थ्रू हमको मिलेगा। ठीक है? तो दोनों एंटीना कहाँ होने चाहिए? टू एंटीनास शुड बी, टू एंटीनास कहाँ होने चाहिए? विद इन लाइन ऑफ साइट होने चाहिए, विद इन लाइन ऑफ साइट होने चाहिए। ठीक है? ठीक है? एक दूसरे से, विथ ईच अदर। जैसा कि मैं डायग्राम में भी बनाया हूं, आप देख रहे होंगे, दिस इज द लाइन ऑफ साइट टाइप। क्लियर? एक दूसरे से लाइन में मैच्ड हैं। ठीक है? सो इस तरह का जो प्रोपगेशन होता है, सच प्रोपगेशन इज कॉल्ड स्पेस वेव प्रोपगेशन। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन कहाँ होता है? जनरली स्पेस वेव प्रोपगेशन में ही होता है। ठीक है? क्लियर है? एग्जैक्टली क्या होता है? ये जो प्रोपगेशन है मेनली स्पेस वेव में होता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन से भी आता है, जैसे स्पेस वेव प्लस सरफेस वेव। ये कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट मिलता है वो भी आपको लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन देता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इधर इट विल बी फॉर स्पेस वेव कम्युनिकेशन, और आप इसको कॉम्बिनेशन से भी अचीव कर सकते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस वेव प्लस स्पेस वेव। कॉम्बिनेशन से आपको ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मिल सकता है। ठीक है? अगर आप अर्थ को परफेक्ट कंडक्टर एज्यूम कर रहे हैं, परफेक्ट कंडक्टर का मतलब हो गया इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। ठीक है? उस केस में जो ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग वेव्स होंगी उनके एम्पलीट्यूड सेम होंगे। ठीक है? ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप अर्थ को, कुछ केसेस में बता दे रहा हूँ अर्थ से रिलेटेड। जैसे पहला केस है, अगर मान लीजिए इफ अर्थ को आप कंसीडर कर रहे हैं, क्या मान रहे हैं? परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर का मतलब क्या है? कि जिसकी कंडक्टिविटी होगी वो इनफाइनाइट होगी, मीन्स इनफाइनाइट कंडक्टिविटी विल बी देयर। ठीक है? और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? कि ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड सेम होंगे, मीन्स ट्रांसमिटेड एंड reflected wave have same amplitude, transmitted and reflected wave have same amplitudes। clear? अगर ये तो हो गया हमारा कि जब हम इसको परफेक्ट कंडक्टर की तरह ले रहे हैं। सेकंड केस है, अगर हम अर्थ सरफेस को हम स्मूथ प्लेन ले रहे हैं,
इफ अर्थ सरफेस जो है, तीनों केस आपको पता होने चाहिए। अगर अर्थ सरफेस हमारा स्मूथ है, स्मूथ प्लेन, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, सपोज फाइनाइट है, सो कंडक्टिविटी इज फाइनाइट, ठीक है। उस केस में क्या होगा, सो एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एट परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। उस केस में आपको जो एम्पलीट्यूड एंड फेज, ठीक है, ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज अचीव्ड, कहाँ से अचीव्ड होगा, वी यूजिंग concept of reflection at perfect dielectric, concept of reflection at perfect dielectric, ठीक है। अगर मान लीजिए थर्ड केस है और अगर आपकी अर्थ सरफेस क्या है, रफ है, अर्थ सरफेस अगर आपकी रफ है, उस केस में क्या होगा, स्कैटरिंग होगी रिफ्लेक्टेड वेव की, ठीक है, स्कैटरिंग होगा, स्कैटरिंग will take place of reflected wave, स्कैटरिंग हो जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव की, ठीक है, स्कैटरिंग विल टेक प्लेस ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। अब स्कैटरिंग की वजह से क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है रिफ्लेक्टेड वेव का वो रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू द स्मूथ सरफेस, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव रिड्यूसेस, रिफ्लेक्टेड वेव रिड्यूसेस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्या है, इसी को हम लोग एग्जैक्टली रफनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रफनेस, क्या बोलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अभी मत लिखिए यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड द रफनेस, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द रफनेस, रफनेस ऑफ द सरफेस, ऑफ द सरफेस, ठीक है, रफनेस ऑफ द surface that is responsible for the scattering of the reflected wave, that is responsible for the responsible for the scattering of reflected wave, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग रैले क्राइटेरिया, कैन बी, यही रैले क्राइटेरिया है, या ध्यान रखिएगा, ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग रैले क्राइटेरिया है, जिसके थ्रू हम इसको ऑब्टेन करते हैं, क्या, स्कैटरिंग फ्रॉम द रफ सरफेस, रिफ्लेक्टेड वेव की जो स्कैटरिंग होती है रफ सरफेस से, वो हम रैले क्राइटेरिया के थ्रू फाइंड करते हैं। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द नीड ऑफ रैले, या व्हाट पर्पज वी अचीव फ्रॉम द रैले क्राइटेरिया, ठीक है, ये आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि रैले वो स्कैटरिंग ऑफ द अर्थ सरफेस से जो रिफ्लेक्टेड वेव की स्कैटरिंग वो हम कैसे अचीव करते हैं रफ सरफेस से,
तो आपको बताना रेले क्राइटेरिया से अचीव करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू रेले क्राइटेरिया, रेले क्राइटेरिया कॉमा, if the reflected surface is rough, if the reflected surface is rough, अगर आपके रिफ्लेक्टेड सरफेस रफ है, ठीक है, सो रिफ्लेक्शन इज सिमिलर टू, रिफ्लेक्शन इज सिमिलर टू that due to the smooth surface, due to smooth surface, due to smooth surface, provided that the angle, provided that the angle of incidence, angle of incidence